नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम. Welcome to Dr. Bhavdeep Ahuja's video on Budget 2025 analysis. I know this is a little late, but I was waiting कि निर्मला जी फाइनेंस बिल पेश कर दें पार्लियामेंट में. Originally it was listed to be produced on Thursday, today 6th of Feb, but it was not because there was disruption in the proceedings of the parliament. So accordingly, it was scheduled to next week. So my budget 2025 review will be in two parts. The first, I'll give the broad breakup of whatever it has, and then the implication of the same, linking it to the finance bill whenever it is produced in the parliament next week, or is it referred to JPC, or is it passed, or whatever the status is. Accordingly, I'll bring out part two, linking the budget review part two with that. So let's come to the budget review, and I'll share my screen so that I can list out a few facts in front of you. So this is my budget 2025 analysis. Most of you know me very well. If you don't know me, this is my brief CV. You all must have heard about me a little bit. Those of you who have not, please, you can see this here. So what are the key takeaways? That it was a huge budget. The first thing, it was a huge budget, but अपने को सारे से कुछ नहीं लेना देना. अपने को सिर्फ वो लेना देना जिससे अपना लेना देना. Being a healthcare practitioner, being a dentist, being a doctor, whatever, it has to be correlation with us. So let's take that into account. I'll use a mix of English and Hindi. The subtitles will be on. You can on it on YouTube channel also. There will be the transcript along with this also. So whatever language you're comfortable, you can always catch up on that. So as I said, the budget review can be long and tedious. आपने सुना भी होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने. सो मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा, पॉइंट पे बात करूंगा. बट you must have read my dental the review of the healthcare portion of the budget, which was published in the Dental Tribune South Asia. If you have not, I have posted the links in the group, so in the WhatsApp group or in the WhatsApp community, or it is on my social media as well. I have been tagged in a couple of posts by Rajiv Chitgupi, who is the editor of that, so you can watch that. अब इस चीज का, इस बजट का जीएसटी वाले कंपोनेंट से भी लेना देना है. वो क्या है, आई विल कम टू दैट ऑल्सो एट द एंड. जीएसटी के बारे में एक अलग से वीडियो आएगा ऑन सैटरडे. 2 days, टुडे इज थर्सडे 6 फेब. 8 फेब को वो वीडियो आ जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे. टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट हेयर, जो पुराना जीएसटी वीडियो है मेरा, इट वॉज पोस्टेड डेटेड ऑलमोस्ट 1.5+ years back, or 1 year or 8 or 9 months back, 17 May 2023. वो किस लिए मैं डेट बता रहा हूं, I'll come to that perspective very soon. Now, पहली चीज, of course, there have been multiple things in this. एक तो मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ गई, 10,000 इस साल में बढ़ेंगी, 75,000 टोटल 5 साल में बढ़ेंगी. सारों के लिए कॉलेजेस नए नहीं खोले जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली, बट बहुत सारे एग्जिस्टिंग के लिए शायद कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को स्प्रेड किया जाएगा. आई हैव रिटन दैट इन माय हेल्थ केयर बजट रिव्यू एज वेल, विच वाज पब्लिश्ड इन डेंटल ट्रिब्यून साउथ एशिया, दैट many of the expanded colleges, many of the expanded hospitals would be expanded. So what difference does one seat make? One seat means you have to add 4 beds. So अगर ये एक्चुअल में 75,000 सीटें अगले 5 साल में ऐड हो जाती हैं, which means we'll have 3 lakh more beds, which is almost 1/3 of the current existing infrastructure of India, which is huge. And of course, daycare cancel centers will be established, and उनमें से 200 तो आने वाले साल में अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक they will be established. MSMEs के लिए क्रेडिट लिमिट raised from 5 crore to 10 crores. Of course, micro enterprises के लिए 5 lakh credit limit, 10 lakh cards in a year. And then there will be funds to support them for new businesses, especially new startups, and that includes new startup clinics as well. So new scheme for first time entrepreneurs, 5 lakh for scheduled caste and scheduled tribes, and women entrepreneurs to get loans up to rupees 2 crores. Of course, the MSME loan, for that you need to have a Udyam ID.
और उद्योग आधार जिसको पहले बोलते थे, तो यू कैन रजिस्टर देयर, यू कैन हैव योर उद्योग आधार और उद्यम आईडी ओवर देयर, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लोन फ्रॉम द एमएसएमई कैटेगरी विच इज अ टैड चीपर देन द लोन्स दैट यू गेट अदरवाइज ना। अब बहुत सारों ने बोला कि यार ये बिहार का बजट है, इसमें पटना के लिए बहुत कुछ है, पटना एयरपोर्ट को कर रहे हैं, एक मखाना बोर्ड कर लिया। मखाना, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में फॉक्सनट बोलते हैं, इट इज़ अ, वहाँ 80 to 90% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम बिहार। And makhana is a great, foxnut is a great source of proteins as well, and a great nutritional supplement as well, used in various medicines also. So there are multiple uses. I won't go into the uses of that, but सबको ये लगा कि ये बिहार का बजट है। तो before that I'll have a this thing, I want you to have a view at the commonest airports। दिल्ली का आप सबने देखा होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु का अभी रिसेंटली टर्मिनल 2 को अपडेट किया उन्होंने, कैंपेगौड़ा। हैदराबाद का पिछले 3 साल से इट्स इन द टॉप 3 कैटेगरी। मुंबई तो वी ऑल नो। तो ऑल ऑफ दीज एयरपोर्ट्स आर नाउ वर्ल्ड क्लास, एटलीस्ट इन देयर लुक एंड एटलीस्ट इन देयर अपीयरेंस। हाउ डज द पटना एयरपोर्ट लुक लाइक? सबने बोला बिहार ऐसा बन जाएगा 2026 में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिहार को इतना भी कुछ नहीं मिला है। ठीक है, पीपल हैव देयर नोशंस की इलेक्शन के कारण बहुत कुछ हुआ, बट लुक एट द एयरपोर्ट विच एग्जिस्ट राइट नाउ। डज इट इवन फील लाइक एन एयरपोर्ट? इट फील्स लाइक, जब टर्मिनल 1 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का था, दिल्ली में होता था 2006-05 में, हम लोग ट्रैवल करते थे जब, तो हम लोग उसको एयरपोर्ट नहीं बोलते, हम लोग बोलते थे ये एयरपोर्ट नहीं, ये एयरपोर्ट के नाम पे धब्बा है, ये बस स्टैंड है, लिटरली। एंड इट अपीयर्स टू मी लाइक द सिमिलर वे। यस, जो आप राइट साइड पे पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख रहे हैं, ये इसका एक 3D वर्चुअल सेटअप है। बन जाएगा तो शायद ऐसा हो जाए, बट राइट नाउ इट एग्जिस्ट लाइक दिस, सो इट ऑल्सो हैज़ द राइट टू get upgraded like all the, and Patna is one of the metros of India, so it has all the right to get it upgraded. So I won't go into the bias or the non-bias, but to tell you the fact that if all the airports are getting upgraded, why a problem for the Patna airport? अब आते हैं असली मुद्दे पे, द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन जो बात करते हैं। इन मैडम को दुनिया जहान की गालियां मिली, वर्स्ट एफएम एवर, वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, खून चूसने वाली आंटी, बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन अल्टीमेटली इनकी क्या सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुई है बजट के बाद, यू डोंट इवन हैव एन आइडिया। सो व्हाट हैपेंड, व्हाट एग्जैक्टली मैजिक दैट शी डिड इन बजट 2025, लेट्स सी। सो द फर्स्ट थिंग, जो आप लोग रेंट देते हैं घर का या क्लिनिक का, उसमें एग्जाम्पशन लिमिट आपको एक टीडीएस कटता था अगर आपका रेंट 20,000 से ऊपर पर मंथ होता था। नाउ दैट एग्जाम्पशन लिमिट इज 50,000 पर मंथ, और साल का बोले तो 6 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन का टीडीएस कटता था अगर वो उनकी 50,000 से ऊपर इनकम जाती थी। सो अब उनका वो टीडीएस का थ्रेशोल्ड 1 लाख है। नाउ टीडीएस डज नॉट मीन कि आपका टीडीएस अलग कटेगा, इनकम टैक्स अलग कटेगा। आई हैव गिवन दिस क्लैरिटी मल्टीपल टाइम्स। टीडीएस इज अ पोर्शन ऑफ द टैक्स विच यू पे बिफोर हैंड, and at the end when you file your ITR on 31st July or before that, every single penny would be adjusted what you have paid। अगर आपके 100 रुपये देने बनते थे, उसमें से आपने अगर टीडीएस में 80 रुपये दे दें, तो यू विल पे ओनली 20 रुपीज एट दैट टाइम, जस्ट टू गिव यू नोशनल एग्जाम्पल। बाकी लोगों के लिए जो लिमिट जो 40,000 थी, इट वॉज रेज टू 50,000। एंड डिविडेंड्स वगैरह पे, म्यूचुअल फंड्स की इनकम पे 5,000 पे आपका टीडीएस कट जाता था 7.5% के हिसाब से। दैट लिमिट इज रेज टू 10,000। अब हर एक को एक घर पे मिलता था एग्जाम्पशन, दूसरे घर के ऊपर आपको देना पड़ता था जो भी उसकी इनकम है। अब 2 घरों को आपने ऑक्यूपाई किया है नहीं किया है, देयर वर अ ह्यूज नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। ह्यूज नंबर तो नहीं, चलो 4-5 टर्म्स एंड कंडीशंस थे, बहुत सारी सेटिस्फाई नहीं होती थी, बट देन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप रहते हैं नहीं रहते हैं, ऑब्वियसली बंदा एक घर एक टाइम पे तो 2 घर में नहीं रह सकता, एक उसने लिया हुआ है, एक उसने आगे दिया हुआ है, वट एवर, लेट आउट किया या नहीं किया, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 घर है आपके जो नाम पे, उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड गिना जाएगा। देन टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आप एजुकेशनल, अगर आपके बच्चे, आप में से बहुत सारे सीनियर डेंटिस्ट होंगे, अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उनके ऊपर जो रिमिटेंस लगती थी 0.5% की 7 लाख से ऊपर, वो अब ओवरसीज के लिए बंद हो गई है। देन फॉरेन रेमिटेंस जो लिमिट थी वो 7 लाख से 10 लाख तक हो गई है थ्रेशोल्ड, उसके बाद जो होगा वो होगा।
अब एक नया इनकम टैक्स बिल है जिसका बिल आने वाला है, विच विल रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बोले तो 64 ईयर ओल्ड एक्ट, जिसमें से बहुत सारे सेक्शंस रिडंडेंट हैं। अब बेसिकली डिडक्शंस ही रिडंडेंट हो रही हैं, तो सेक्शन 80 का जो चैप्टर 6A है वो पूरा का पूरा रिडंडेंट हो जाएगा। शायद OTR भी चले जाए, ओल्ड टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स बिल इज सपोज टू बी वेरी सिंप्लीफाइड। मेरा यही मानना था कि शायद आज आ जाएगा, तो आई विल पुट अप माय वीडियो अकॉर्डिंगली, बट नहीं आया। दोपहर तक पता लग गया, तो शाम में फिर मैंने वीडियो शूट किया फॉर दिस पर्पस। सो इसके कारण आई होप इट गिव्स मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर क्लैरिटी टू ऑल, even the CAs or the administrators or the government or the individuals. So जो आप एक अपडेटेड रिटर्न पिछले 2 साल तक की भर सकते थे बैक डेट में, अब वो गवर्नमेंट ने 4 साल कर दिया टाइम, सो दैट यू कैन डू इट इन बैक डेट। एंड उसके लिए यही है कि वी ट्रस्ट द टैक्स पेयर, सो वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस उसमें बढ़ेगी, ऑफ कोर्स दैट इज द एम बिहाइंड इट। बट देन what exactly was the, I'll come to this chart later on in a moment, but जो बम्पर कार्ड खेला, सब कहते थे लिमिट बढ़नी चाहिए 7 लाख, पिछले साल उन्होंने 6 से 7 कर दी, 7 से 7.5 कर दी, वो क्या कर दिया, वो कर दिया, कोई लिमिट देते नहीं है, ये तो खून चूसने वाली गवर्नमेंट है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करती है, अंबानी अदानी गवर्नमेंट है, दे हैव बीन लिसनिंग टू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स दे वर, the rant was justified to an extent, because the middle class hardly has got something beneficial in that. And nobody, actually nobody, not even the greatest of the optimists would have thought that the government would raise the limit सीधा 5 लाख, 12 लाख तक की इनकम के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं। अब डेंटिस्ट के लिए क्या मतलब है इसका, आई कम टू दैट, डोंट वरी। सैलड के लिए 12,75,000, बिकॉज उनको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। सो अब स्लैब्स को चेंज कर दिया गया, 0 to 4 लाख नील, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, एंड अबव 24 लाख 30%, 5, 10, 15, 25, 30। सो एक बहुत विचित्र बात, शायद आपको नहीं पता हो, एक तो पहाड़ा 4 का पूरा पड़ा गया, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, इधर 5, 10, 15, 20, 25, 30। देन ये बजट का जो सेक्शन था डायरेक्ट टैक्स का, आई रेड अबाउट इट ऑनलाइन, इट वॉज एग्जैक्टली अनाउंस्ड एट 12:12 PM, और जस्ट 12 minutes पास्ट नून। सो इसमें अगर कुछ वो है, आई एम नॉट श्योर कि 4 का टेबल पूरा है, 5 का टेबल पूरा है, 12:12 पे हुआ, समथिंग पर्टेनिंग टू समथिंग, आई डोंट नो। सो आई विल डिटेल दिस आउट फर्दर। पहले 15 लाख के ऊपर आप 30% देते थे, अब सीधा 24 लाख के ऊपर आप 30% देंगे, और 9 लाख की जंप 30% के स्लैब्स के कारण एक 25% का नया स्लैब आया है। सो ऑल दिस हैज़ एक्चुअली चेयर्ड अप द मिडिल क्लास, जो बहुत टाइम से इस चीज़ की दुआ कर रही थी। बट एज आई सेड, इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑप्टिमिस्ट वुडंट हैव थॉट कि ये चीज़ होगी। अब टैक्स ऑन इनकम 4 लाख तक कुछ नहीं है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं है, वो वैसे का वैसे ही है। उसमें सिर्फ एक नई चीज़ ऐड की गई है कि जो एनपीएस वत्सल्य सितंबर 2024 में लॉन्च की गई थी, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम फॉर किड्स, उसमें आप एक्स्ट्रा डिडक्शन जो 80 CCD 1B के अंडर लेते थे वो मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट एंड से, दैट इज व्हाई आई वाज वेटिंग फॉर फाइनेंस बिल। एक तरफ लोग कहते हैं OTR इज रिडंडेंट नाउ, विच एक्चुअली इट इज। उसमें आप नया डिडक्शन क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अगर आप OTR को जवाब देने वाले हैं या OTR को जाने देने वाले हैं? तो इसका मतलब अगर आपने नहीं इंट्रोड्यूस की है डिडक्शन, तो इसका मतलब OTR अभी नहीं जाने वाला है। सो उसमें स्लैब्स 5, 20 और 30 सिंपल हैं। उसमें तो आपको 15 लाख के ऊपर भी नहीं मिलता था, उसमें आपको 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता था। उसमें 87A रिबेट वॉज 12,500। उसमें कुछ चेंज नहीं है। अब क्वेश्चन सिर्फ आगे वही आता था कि OTR क्यों बेटर है, क्योंकि उसमें 80C मिलता है, 80D मिलता है, घर लेते हो तो उसके ऊपर लोन के ऊपर मिलता है, तो कुल मिला के कुछ होता था। और कुछ नए चेंजेस किए गए, ऑफ कोर्स NSS एग्जाम्प्ट किया गया अगस्त 29, 2024 के बाद, जो भी आप विड्रॉल उसके बाद करेंगे, सो यू कैन हैव द टैक्स एग्जाम्पशन फॉर दैट। ऑफ कोर्स यू कैन, दोज हु हैव विड्रॉ फंड्स ऑन और आफ्टर 29th August 2024। देन मेडिकल ट्रीटमेंट expenses would be exempt for those who are earning up to rupees 2 lakh per annum.
अब नेचुरली आई डोंट बिलीव कि आज की डेट में कोई 2 लाख पर एनम सरकारी एम्प्लॉय या कोई भी एम्प्लॉय कमाता होगा. ऑफ कोर्स क्लास 3 क्लास 4 कैन बी पॉसिबल, बट इज इट एप्लीकेबल टू प्राइवेट एम्प्लॉयज ऑल्सो? द क्लैरिटी इज स्टिल नॉट गिवन. सो इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो आई विल डिस्कस द इम्प्लीकेशंस फर्स्टली पर्टेनिंग टू एनटीआर ओनली, बिकॉज ओटीआर में कुछ चेंज हुआ है एक्सेप्ट एक एनपीएस वात्सल्य, विच इज अगेन, अगर आप अपने लिए कर रहे थे तो आपको एनपीएस वात्सल्य को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा. बट देन व्हाट आर द चेंजेस? सो मोस्ट ऑफ अस फॉलो प्रिजम्पटिव, एंड विच इज द वे टू गो. प्रिजम्पटिव का मतलब होता है कि अगर आपका revenue is 100 rupees, you can presume 50% or 50 rupees out of that as expenses. Now revenue का मतलब होता है total collection. Now total collection means from all sources. NEFT डाला किसी ने, QR कोड से डाला, कार्ड से डाला, कैश में दिया. Total sources, total collection of your clinic per year, if it is let's suppose 100 rupees, उसमें 50% are expenses if you are following the presumptive system. Now, presumptive system does not want you to keep any bills, any receipts, any books of accounts. उसमें सिर्फ दो राइडर होते हैं मेनली. नंबर एक कि आपको रिसीट का सोर्स चाहिए, और नंबर टू, अगर आपका 20 लाख से ऊपर जाता है तो देन डेफिनेटली यू नीड टू हैव द जीएसटी नंबर्स एज वेल. जैसे मैंने बोला जीएसटी की इसका इम्प्लीकेशन क्या है, आई विल कवर दैट इन अ सेपरेट वीडियो एज वेल विच विल कम ऑन सैटरडे. सो वॉच आउट द स्पेस फॉर दैट. सो अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ओटीआर करें एनटीआर करें. द डिबेट इज ओवर. 10 लाख से ऊपर 30%, जब 15 था तो मैं जस्टिफाई करता रहा हूं लास्ट ईयर तक, कुछ ना कुछ करके डिवाइड करके. बट नाउ दिस डिबेट इज ओवर सिंस लॉन्ग. एनटीआर इज द वे टू गो एंड प्रिजम्पटिव एनटीआर इज द वे टू गो. सो बट इसके इंप्लीकेशन ये हैं कि जो आप सेविंग्स करते थे दैट गोज आउट ऑफ द विंडो, because this will mean you'll have more money in your hand, but where you will spend, it is absolutely your prerogative. The choice is yours. So my inference of the budget, whether it is good, bad, or worst, or average, I will call it an excellent budget, specifically speaking from the middle class point of view, because they were due for it for long. अब गवर्नमेंट धीरे धीरे सबको अपना बनाती जा रही है. I think the time is ripe. They have bought over the middle class by this gesture of theirs. It is time that they honor the bread makers or the crop producers of the country, that is the farmers, by giving them what they want. MSP guarantee law, that what they want, giving them in a way where they feel that they are being respected. Of course, what the government is doing for them, it is not less. It is a great deal. The money directly reaches their account, whatever it is. But it is time to respect the poorest or the poor farmers of the country. And having said that, for that, if you have to tax the rich farmers, so be it. So be it. बहुत सारे नकली फार्मर्स भी हैं, जस्ट नाम के लिए नहीं लाऊंगा. बहुत सारे फिल्म स्टार्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज एग्रीकल्चर पीस ऑफ लैंड बल्कि नोशनल फार्मर्स बन जाते हैं. एक लिमिट सेट कर दो यार. आपने हमारे लिए 4 लाख रखी है, चलो 12 लाख रखी है टिल नो टैक्स. उनके लिए 20, 25, 30, 40. गरीब किसान 40 लाख साल का नहीं कमाता, 30 लाख नहीं कमाता, 25 लाख भी नहीं कमाता. आप लिमिट रख दो 25-30 लाख. 25-30 लाख अपने से दुगनी रख दो. हमारी 12, उनकी 25 कर दो, 24 कर दो, 30 कर दो. उससे ऊपर जो किसान कमाता है ही शुड बी टैक्स्ड. ही शुड बी टैक्स्ड. और जो आपने 1 लाख करोड़ यहां से फोरगो किया है, चार्ज देम. चार्ज देम. इन बदले में एमएसपी गारंटी कानून दो उनको. विन ओवर देम ऑल्सो. यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क. आई वोंट से यू आर डूइंग परफेक्ट वर्क, बट एटलीस्ट यू आर वर्किंग. अगेन आई वोंट कंपेयर कि पिछले ने क्या किया, 50 साल में क्या हुआ, 60 साल में क्या हुआ. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दोज डिटेल्स. बट यू आर वर्किंग. काइंडली कीप ऑन वर्किंग. मिडिल क्लास को आपने खरीद लिया या वो कर लिया, फार्मर्स को भी कर लो. इट्स लॉन्ग. बहुत देर से बेचारे बैठे हैं. आपने फार्म लॉज, आई स्टिल बिलीव, वर प्रो फार्मर. दे वर मिसगाइडेड एंड दे वर रिपील्ड. Farmers thought we could get our way every time. It's not. But what they're demanding to an extent is justified, but probably their way is not correct. That is what I request the government. And I'll cover more of this in my part 2 of the budget. आपके कुछ और सवाल होंगे तो प्लीज पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स.
Open to review, open to feedback, open to any kind of opinions. If you liked this review, please do share with your friends and colleagues. And for more such videos, please keep following my channel. Every day a video at 7:30 is there. So thank you so much, and look out for my GST video very soon. Bye-bye. And I'll see you soon in one of my next videos pretty shortly. Thank you. Bye-bye. Take care.